Class we started with, if you remember, acquired immunity, correct? We gave you homework also for that only. Types of acquired, if you remember, we discussed that. Artificial, we discussed passive, active. एक short में passive was short term, active was long term. Natural, which you directly get by getting infected or from mother. Mother was important there, correct? और artificial क्या था? Vaccination or some antibodies which you take from outside. This is how we were discussing immunity, correct? Is that clear, class? इतना clear है? तो हमने acquired के characters के थे cell on cell. It is very specific. It is diverse, correct? We went to the 4 characters very properly. Self, non-self. It is specific, diverse. और एक बहुत important line बोली थी. What was that? Never to forgive and never to forget. Immunity अलग rule follow करती है कि कभी भी क्या करना है? We don't have to forgive and we don't have to forget. जबकि usually the quotation goes otherwise. ठीक है? So we go back to that and we move ahead. हमने जहाँ पे end किया था, that was T lymphocyte. If you remember, what was the lymphocyte? T, helper, killer, memory, correct, suppress. ये 4 टाइप के T सेल के थे. फर्स्ट we went to B, then we went to T. B we stopped at it forms antibody और उसका कोई काम नहीं. What is the work of B? Only to make antibody, but that only is a very big job, very big. You actually fight with the antigen with help of antibody. Then the other work is given to T. The helper is the identifier. Killer goes and kills, actually kills. Then we have suppressor, which puts the immune system down when after the infection is over. We also said suppressor helps to identify the cell from the non-cell. And we spoke about memory. Yaad rakhna hai na? Not to forget, not to forget. Fine. So let's go back. Let me go to the, just give me 1 second. क्लास आई होप आप लोग पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली. चैप्टर काफी लेंदी है अगर आपने देखा है तो. ठीक है, आई होप बुक खुल रही है. Now it has to be two-sided effort. Huh? Yeah. Okay, so we were here. Yeah. 1 minute. Let me read your chats. There are some questions. Can you speak a little louder? Yes, surely I will. 1 second, I'll just put the fan on. 1 second, maybe that is the difference. Passive artificial acquired का एक और एग्जाम्पल होगा रेबीज के अलावा. या आई टोल्ड यू टेटनस. टेटनस बोला था मैंने. हम टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं 6 मंथ के लिए, करेक्ट? ये किसी ने पूछा मुझे. ठीक है ना. एक हमने रेबीज बोला, दूसरा आपने टेटनस बोला. दोनों टेम्पररी काम. ठीक है, दोज आर टेम्पररी वैक्सीनेशन. ठीक है. ओके, कमिंग बैक. एक्वायर्ड पे आ गए थे. ठीक है. नॉन कम्युनिकेबल, सॉरी, आगे चले गए. बड़ा चैप्टर है ना. Yeah, I think I stopped at this diagram. Just a minute, class. I'm putting. Okay, is the disturbance, is my voice clear now? Yes. Somebody please reply or put in the chat. Okay, audible है ना clearly? मैंने ये diagram पे stop किया था कि we have T lymphocyte, we have B lymphocyte, T cellular दिख रहा है आपको, B humoral, humoral मतलब blood में action, antibodies बनाएगा वो,
और फिर मैंने बोला था NK सेल, जो हम बाद में देखेंगे, नेचुरल किलर सेल, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, ठीक है। सो वी मूव अहेड नाउ, टाइप फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट T and B and natural सेल, ठीक है। We go back, T lymphocyte matures, this is just a recap. Last line देखिए, B in the bone marrow, T in the thymus. So T for thymus, B for, अगर थोड़ा सा याद है, Bursell cells. Bursell cells which are present in the bone marrow, in the hairs पे। किसी का ऑटो या किसी के घर में टीवी ऑन है? मैम हाँ बोलो। ये थाइमस का मतलब क्या है? थाइमस एक ग्लैंड है, थाइमस एक ग्लैंड है, कल मैंने ड्रॉ भी करके दिखाई थी। लंग्स के बीच में देखो मैंने 2 लोब्स बनाए थे, याद आया? थाइमस, ऐसे कल हमने लंग्स बनाया था, करेक्ट। और यहाँ पे मैंने बोला था 2 लोब्स है थाइमस, जो एज के साथ श्रिंक होती है, जो एज के साथ श्रिंक होती है। आर यू गेटिंग इट? हमारे लंग्स और जहाँ पे आपके रिप स्टर्नम एंड होता है, ऑलमोस्ट वहां पे थाइमस होती है, इट्स अ ग्लैंड। और वहां पे थाइमस से 4 टाइप के लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ओके। सो दैट इज द स्पेशलिटी। थाइमस इज कॉल्ड द, you can say, the main gland with respect to immune system. बहुत ही important gland, तो ही immune system काम करता है। Now mechanism of B, T हमने किया, T के 4 टाइप की, B में कोई टाइप में नहीं गए हम डायरेक्टली, हमने कहा वो सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है, करेक्ट। Now let's see how it works. Just a minute, lots of noise here, I just yeah, sorry class. Yeah, so mechanism B lymphocyte, आप ध्यान से सुनेंगे, how it works, how B lymphocytes come to know कि अभी एंटीबॉडी बनाना है, और कौन सा एंटीबॉडी बनाना है, कैसे बनाना है। Now when I say कौन सा और कभी, ये याद रखिए, if there are millions of bacteria, we can make millions of antibody, so don't worry. Our specialization is too much, too good. Your B lymphocytes are too good. Means if you are worried कि there may be crores of viruses, type, I'm talking about types, okay, not in number. Bacteria 1, bacteria 2, bacteria 3, ऐसे हजारों बैक्टीरिया है, बराबर है। तो अगर हजारों भी अंदर आएंगे तो we don't have to worry. B lymphocyte will make हजारों एंटीबॉडी. Are you getting? So imagine the efficiency is so good. But when they will make, only when the T cells, T helper, H लिख दिया मैंने, T helper will tell them that this is a antigen. Okay, so helper has to tell them this is antigen, or the antigen should be such that it is directly activating the B lymphocyte. Look at the first line. They are sensitized. Sensitized matlab made alert, made active. Somebody should wake them up sort of. So B lymphocyte है, लेकिन उसको पता तो चले कि एंटीजन आया है, कौन बताएगा? हेल्पर टी सेल 1, या तो फिर एंटीजन डायरेक्टली बी के पास पहुंच गए, सो एंटीजन खुद बता सकता है, करेक्ट। सो दे शुड बी सेंसिटाइज्ड डायरेक्टली बाय द एंटीजन और बाय द हेल्पर टी सेल, ठीक है। इज दैट वेरी क्लियर? नाउ दिस एक्टिवेटेड बी सेल जो अभी एक्टिव हो गया will divide 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 16, 32, and this will just go on and produce plasma cells. ये word देखिए class. And produce antibody नहीं बोला हमने. What did we say? And produce plasma cell. ठीक है? Which are clone, जो उसके xerox copy है. Okay? It will produce many B cells which are known as plasma cells. ठीक है, ये एक कैटेगरी होगी. It will make one more category, memory B cell. So can I divide that this B lymphocytes make plasma cells and memory cells? Plasma cells कितने बनेंगे? many, unlimited. Memory कम बनेगा, थोड़े से बनेंगे.
ठीक है, सो वी आर मेकिंग 2 कॉपीज हियर. प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. Plasma cells produce antibodies. So when I say B lymphocyte produce antibody, there is a little technical issue. B lymphocyte produces plasma cell. देखो क्लास, B से प्लाज्मा, प्लाज्मा से एंटीबॉडी बनती है. Are you understanding? B makes plasma, जो उसका ही कॉपी है, और उससे क्या बनता है? एंटीबॉडी. आई एम स्पेसिफाइंग सो मच because this was a question in CET. ये क्वेश्चन किस में आया था? सीईटी में आया था. ओके, और उस वक्त टेक्स्ट बुक में बहुत क्लियरली मेंशन नहीं था. ठीक है, ऑप्शन क्या दिया था? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाय बी सेल्स, टी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, और एक कोई ऑप्शन था, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ. फाइन. तो नेचुरली कुछ बच्चों ने क्या लिखा? बी सेल. पर कुछ लोगों ने क्या लिखा? Plasma cell. Now which is right? Okay, we are in trouble now. ठीक है, to be more specific it should be plasma. बराबर है? B makes plasma, plasma makes antibody. क्योंकि CET में क्वेश्चन क्या होता है? Mark the most appropriate answer. सबसे अच्छा वाला आंसर. ठीक है. Now class, जब ये हो गया, because that time the textbook had not, I'm talking quite a few years back, maybe है 199 मिला, और ये क्वेश्चन उसको रॉन्ग मिल गया. देन दिस मैटर वाज पुट इन द कोर्ट. ओके, स्टूडेंट ने लीगल फाइट किया और उसको वो 1 मार्क देना पड़ा, और फिर उसको फुल 200 मिला. आर यू गेटिंग? सो दिस इज द कॉन्फिडेंस पार्ट ऑफ द स्टूडेंट, दैट टेक्स्ट बुक ऐसा बोलती है, देन हाउ एम आई सपोज्ड टू नो अबाउट प्लाज्मा सेल्स? आर यू गेटिंग इट? So, उस वक्त टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम थी, अभी नहीं है. अभी टेक्स्ट बुक बहुत क्लियरली बोल रही है. मैम, बोलो. वो बच्चे को भारी पड़ गया होगा. क्यों वो भारी क्यों है? लॉयर को हायर करने के लिए. जब आप केस जीतते हो तो स्टेट बोर्ड आपको पे करेगा उस खर्चे का, अगर उनकी गलती है ना? आर यू गेटिंग इट? इट इज ऑलवेज एक्सपेंसिव. लेकिन देखो, उसको 19 उस वक्त मेडिकल सीईटी से मिलता था, तो उसको 199 पे भी केएम मिल रहा था, 200 पे भी केएम मिल रहा था. बट बात सही और गलत की थी कि व्हाई शुड आई गेट 199, व्हाई नॉट 200? एंड दे हैड टू गिव. आर यू अंडरस्टैंडिंग? गेटिंग इट? द बात वो थी कि कॉन्फिडेंस कितना था. 199 पे भी बच्चे को क्या करना है? मिल गया मेडिकल में एडमिशन, ठीक है, फाइन. 200 मिलके भी उसको कोई, उसके एडमिशन में तो कोई चेंज नहीं हुआ. लेकिन द पॉइंट वाज गेटिंग फुल मार्क, और जो यू नो दोज हु आर वेरी वेरी श्योर अबाउट इट, दे विल फाइट फॉर दैट 1 मार्क आल्सो बिकॉज़ दे हैव वर्कड हार्ड. अब नहीं, आप टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया हुआ. ठीक है, समझे आप? और ऐसे नहीं बेटा बात, जब भी आप सही और गलत के लिए खड़े होंगे तो भारी पड़े या कुछ भी पड़े, आपको सही के लिए लड़ना ही चाहिए ना, इजंट इट? है कि नहीं? वी शुड फाइट फॉर व्हाट इज राइट. बराबर है? यस मैम. हाँ, बराबर है. मैंने आपको पहले ही कि आपकी न्यू टेक्स्ट बुक में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी, तो यू नेवर नो, कल को आपको भी फाइट करना पड़ जाए. सो वी हैव टू चेक. लेकिन उससे बेटर क्या, हम पहले ही अलर्ट रहें, थोड़ा और एक्सेस पढ़े, थोड़ा इधर उधर देखें, सो दैट वी नो थिंग्स. ठीक है, ओके. नाउ प्लाज्मा सेल्स क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी. ठीक है. नाउ एंटीबॉडी विल फाइट विद द एंटीजन. ठीक है, antibody will fight with the antigen. Antibody can move with the blood, it's freely movable, or it will go and bind with the cell membrane of the antigen and then keep on fight. मतलब जैसी एंटीबॉडी रिलीज होता है वो पूरे ब्लड में स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ बी सेल एक्टिवेट हुआ. अब उसको हम जरा डायग्रामेटिकली देखें. सी वो ग्रीन कलर का ऊपर एंटीजन, एक ग्रीन कलर का सर्कल दिख रहा है, वो अंदर आ गया. ठीक है, हेल्पर को एक्टिवेट हो गया. हेल्पर देखो ब्लू डॉट वाला, हेल्पर इज एक्टिवेटेड. बी सेल दिख रहा है आपको? बी सेल ये रहा. बी सेल ने क्लोन बनाया. व्हाट इज क्लोन? नाउ टेल मी. प्लाज्मा. अभी आपको पता है ना? यस, अपनी कॉपी बनाई. कॉपी में 2 कैटेगरी थी, प्लाज्मा और
मेमोरी, मेमोरी थोड़े ही बनेंगे, प्लाज्मा बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे. ओके, and then what happens is, look carefully, this plasma cell makes antibody which will always represent by Y shape. दिख रहे हैं बहुत सारी एंटीबॉडीज आपको? Yes, are you getting it? Very clear. देखिए ये एंटीजन अंदर आया, are you seeing this antigen? यहाँ पे भी है एंटीजन, अंदर आया, फैगोसाइटिक सेल ने उसको खा लिया, पॉसिबल है. इट हैज टोल्ड हेल्पर टी, एक्टिवेट हो गया, डायरेक्टली भी एक्टिवेट हो सकता है, फिर वो बी को एक्टिवेट करेगा. करेक्ट? सो देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन व्हिच गोज ऑन, बट बी सेल शुड गेट एक्टिवेटेड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. देन इट विल मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉपी. कॉपी में से छोटा सा सेक्शन मेमोरी में जाएगा and large section will be plasma cell. Plasma cell makes antibody. This is the process. ठीक है? Is that clear? Very sure? Let's move ahead. See, this is another way to represent. ये रहा helper T. दिख रहा है आपको helper T? Yes. ये green वाला है B. B ने क्या बनाई है? दिख रहा है आजू बाजू में एंटीबॉडी. ये प्लाज्मा सेल बहुत सारी एंटीबॉडी. Getting it? Yes. हेल्पर बी को क्या करता है? एक्टिवेट. फिर वो अपनी कॉपीज बनाता है और कॉपीज का नाम है प्लाज्मा सेल. So this is one more way to represent it. बी सेल एक्टिवेशन. देखो एक वायरस है, किसके अंदर जा रहा है? सेल के. कैन यू सी द इन्फेक्टेड सेल? दिखा? यस. बी सेल ने उसको देख लिया. सी द बी सेल सीज, oh this cell is infected. वो immediately क्या करता है? मेमोरी, प्लाज्मा. प्लाज्मा makes antibody. ठीक है? Are you getting it? Lymphoblast मतलब dividing cell, the cell which is dividing now. I repeat this. वायरस, ये सेल इन्फेक्ट हो गया, बी सेल को पता चल गया. Lymphoblast मतलब it starts dividing into memory and plasma. Plasma makes antibody. Memory क्या कर रहा है क्लास? Memory will remember lifelong how to make this antibody. Are you understanding? फिर से वायरस आया तो इतना लंबा नहीं जाना पड़ेगा, फटाफट एंटीबॉडी बनाएंगे प्लाज्मा. It will go very fast. So this is one more way to see it. The basic concept you got it? Yes. अब देखिए, antibodies have three main way of action. Three main action. Each antibody is specific. That means if I can kill, I'm an antibody and I can kill antigen X. तो kill का मतलब क्या? I can fight. I told you antibodies don't kill, correct? So if I can fight with antigen X, I cannot fight with Y. Is that part clear? ये specific word clear है? If I can fight with Y, I cannot fight with X. X के लिए दूसरा बनाओ. Means if I can fight with dengue, I cannot fight with polio. There are different antibodies. So they are very, very specific. And they work in three patterns. 1, 2, 3. ठीक है, मैंने तीन चीज को अंडरलाइन किया. Agglutination, opsonization, neutralization. Can you see the three words? Agglutination, opsonization and neutralization. ठीक है? Agglutination, glue. Glue मतलब गम होता है ना, glue. Glue वो जाके एंटीजन को चिपक जाते. ठीक है? चिपक जाते हैं तो they don't allow it to move. So it forms like this is an antigen. एंटीबॉडी जा जाके उसको चारों तरफ से चिपक जाएंगे, तो वो एंटीजन मूव नहीं हो पाएगा और डिजीज स्प्रेड नहीं होगी. इमोबिलाइज मास. ठीक है? मूव नहीं हो रहा. अब डिजीज स्प्रेड नहीं हो रही पर है तो सही ना. देन दैट बिकम्स विजिबल. इतनी सारी एंटीबॉडीज इधर क्या करे क्लास? कुछ प्रॉब्लम होती है जब कुछ भी, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट सम क्राइम या कुछ झगड़ा हो जाए और पुलिस आ जाए, बहुत सारी पुलिस, तो हम लोग सब देखते हैं, अरे उधर पुलिस क्यों खड़ी है? ऐसा होता है ना व्यू, अरे इधर पुलिस है मतलब कुछ हुआ है. बराबर है? सेम वे हमारे phagocytic cells will see, oh इधर एंटीबॉडी क्या कर रहे हैं इतने सारे, what are they doing? So they come there
and engulf the antigen. Are you understanding the technique? A glue, ये एंटीजन, इसको एंटीबॉडी वाई शेप आके स्टिक हो गया. ग्लू, ग्लू मतलब चिपक जाना. एंड दिस हैज बिकम इमोबाइल, इट इज होल्डिंग इट. ठीक है, इट बिकम्स अ बंच. और ये कौन देख रहा है हमारा, सपोज मैक्रोफेज, वो आके इसको खा जाएगा. Phagocyte. Is that clear? One method is clear. Did we kill? No. Opsonization. So this is the bacteria. Antibody फिर से उसके चारों तरफ आ गए and they form a coating around it, एक layer. उसकी वजह से जो macrophages हैं यहाँ पे they are not making it immobile, they are releasing the protein. C class, ये बैक्टीरिया. ठीक है, अब एंटीबॉडी ऐसा प्रोटीन रिलीज कर रहा है, एंटीबॉडी खुद भी प्रोटीन, जो इसके चारों तरफ आ जाए. ठीक है, दे आर नॉट होल्डिंग इट, दे जस्ट सराउंडिंग इट विथ केमिकल्स एंड आवर मैक्रोफेजेस विल कम एंड एनगल्फ दैट बैक्टीरिया. ठीक है, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन. ये रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया ने टॉक्सिन रिलीज किया टी. ओके, अब ये रहा हमारा एंटीबॉडी, वो भी एक केमिकल, और दोनों हो जाएंगे न्यूट्रल. इसको बैक्टीरिया को कुछ नहीं कर रहा है, बट वॉट एवर बैक्टीरिया रिलीज उससे एंटीबॉडी बाइंड हो जाता है एंड द रिएक्शन गेट्स न्यूट्रलाइज, मतलब हमारे ऊपर एक्शन नहीं हो. Are you getting it? So what are the three ways we fight? Agglutination, opsonization, neutralization. Neutralization is directly reaction between antibody and the toxin. Result is neutral. Opsonization is making a covering. Agglutination is holding it. Especially जब मैं holding बोलती हूँ ना, ये बैक्टीरिया उसका फ्लैजिला है, उस एंटीबॉडी होल्ड कर लेता है. तो फ्लैजिला से बैक्टीरिया अगर मूव हो रहा था वो मूव नहीं हो रही. If it is flagellated. If it is flagellate. Are we getting this? Now let's look at this. See here. आपको दिख रहा है, देखो, ABS is antibodies. Okay, you can see the bacteria, चारों तरफ एंटीबॉडी दिख रहा है. यहाँ पे देखिए ऑप्सोनाइजेशन, एक लेयर बन गया एंटीबॉडी का. अब इसको देखिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. ये रहा बैक्टीरिया और चारों तरफ एंटीबॉडी ने उसकी कोटिंग कर दी, मैक्रोफेज आके उसको खा जाएगा. ठीक है, अब ये देखिए, जस्ट अ मिनट. न्यूट्रलाइजेशन, बैक्टीरिया इज रिलीजिंग सम केमिकल, एंटीबॉडी इज बाइंडिंग विद दैट केमिकल एंड न्यूट्रलाइजिंग इट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट इज नॉट अलाउिंग द वायरस टू इन्फेक्ट, इट इज नॉट अलाउिंग द वायरस टू इन्फेक्ट और द वायरस केमिकल टू इन्फेक्ट और डिस्ट्रॉय एनी सेल. ठीक है, हमारे बुक में 3 ही दिया. देखो, अग्लूटिनेशन, ये यहाँ पे 6 डायग्राम दिख रहे हैं ना आपको, देखिए अग्लूटिनेशन. फिर उसके बाद देखिए, आई विल मूव अक्रॉस, ऑप्सोनाइजेशन, बराबर है, और हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन. आर देयर अदर टेक्निक्स? यस, देयर आर श्योरली मेनी वेज वी कैन डिस्क्राइब इट, बट ओवरऑल देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रेसिपिटेशन भी दिख रहा है. See here, complement fixation, it will put some other chemical with it, antibody से similar, जिससे बैक्टीरिया में खड्डे हो जाएंगे, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी. प्रेसिपिटेशन, सारे एंटीबॉडीज ज्वाइन होकर एंटीजन मॉलिक्यूल को प्रेसिपिटेट कर दे. प्रेसिपिटेट, किल नहीं बोलना, प्रेसिपिटेट. ओके, दे कैन वर्क इन वेरियस फैशन. आवर बुक इज यूजिंग हाउ मेनी टर्म्स? अग्लू. देखो, अग्लू को ध्यान से देखो, ये बाइंड हुआ, ये बैक्टीरिया ज्वाइन हो गया, इससे ये ज्वाइन हो गया, इससे ये ज्वाइन हो गया, तो एक पूरा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बन गया. अब ये आराम से दिखाई देगा और मैक्रोफेज आके उसको खा जाएगा. बराबर है. यहाँ पे क्या किया? बाइंड नहीं किया, यहाँ पे उसके चारों तरफ लेयर बना दिया हमने. नाउ दिस विल फाइंड, करेक्ट. फिर से मैक्रोफेज आएगा. सी द थर्ड वन, न्यूट्रलाइज. दिस वायरस इज रिलीजिंग सम केमिकल which is going to infect my other cells, but I neutralize that chemical. See the antibody around.
So it will neutralize the toxin which is released. Are we getting it? Sure. So they bind, they stop, they glue, they coat and make them more visible to phagocytosis. ठीक है? Class textbook में diagram नहीं है, so you don't have to draw the diagram, but you should at least know the 3 actions. ठीक है? Is that very clear? अब आया APC, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल. ठीक है? ये APC, ये डायग्राम दिख रहा है आपको? They engulf the pathogen and process the antigen. वो उसको खा जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करके बाहर, या तो वो उसको चारों तरफ से कोट करते हैं एंड दे ब्रिंग इट टू हेल्पर टी. हेल्पर टी को दिखाते हैं किसी, दिस इज द एंटीजन, आइडेंटिफाई करो. ठीक है? सी, दे एनगल्फ द पैथोजन, प्रोसेस इट, प्रोसेस करके उसको सरफेस पे दिखा रहे हैं, देखो. ठीक है? And they can stimulate helper T. Helper T, this is the antigen. Antigen presenting. They are making it visible. They are making it available to the helper T more and more fast. क्योंकि helper T फिर B को बोलेगा. And then all reaction will start. Okay? So we have APC, antigen presenting cells. They are also working. Are you noting? Everybody can identify ये एंटीजन है और वो किसी या किसी फॉर्म में उसको या तो मार्क कर रहा है, या तो उसको कोट कर रहा है, या तो उसको विजिबल कर रहा है. तो दिखा रहा है हेल्पर को या तो बी. हेल्पर क्या करेगा? किलर को बताएगा, बी को बताएगा, एंड दे विल फाइट. सो वी हैव टू मेक बी एक्टिवेटेड और किलर को एक्टिवेट करना है किसी भी तरीके से, एंड देन दे विल टेक द नेसेसरी एक्शन. यस, एंटीजन एंटीबॉडी. कैन यू सी वन एंटीजन? सामने दिख रहा है आपको ग्रीन कलर का ये डायग्राम, ये वाला जो इमेज है आजकल न्यूज में बहुत दिखती है हमको, कोरोना वायरस जैसी ना. यस, ये एंटीजन दिख रहा है और उसके चारों तरफ वाई शेप क्या दिख रहा है क्लास? एंटीबॉडी. करेक्ट? एंटीजन एंटीबॉडी. लेट्स लुक एट देयर रिएक्शन. फर्स्ट एंटीबॉडी, आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट हियर. ऑलमोस्ट fixed question. Board just loves to ask structure of antibody. बार बार आता है. Keeps on coming. बहुत बार only diagram भी आता है. Sketch and label antibody. Or it can be describe the structure of antibody. So let's look at antibodies first. Chemically, antibodies are glycoprotein. They fall under which category? प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन. ठीक है? एंड दे बिलोंग टू अ स्पेशल ग्रुप कॉल्ड, बाय ऐड कीजिए, आईजी. एंटीबॉडी बोला तो आईजी फिक्स है. इम्यूनोग्लोब्यूलिन दिख रहा है आपको? इम्यूनोग्लोब्यूलिन. ओके, सो कैन आई से आपका प्रोटीन लेवल इज मोर, तो यू विल हैव गुड डिफेंस सिस्टम एंड यू विल बी एबल टू फाइट विद द एंटीजन इन अ बेटर वे. यस, तो डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन्स. ठीक है? आजकल आप बहुत पढ़ रहे हो ना इम्यूनिटी पे, इम्यूनिटी बूस्टर, ये लो, जिंक लो, बहुत सारी चीजें पढ़ते हो. करेक्ट? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट में प्रोटीन. बाकी चीजें तब हेल्प. विटामिन सी कब काम करेगी? जब आईजी होगा. जिंक कब हेल्प करेगा? व्हेन यू विल हैव आईजी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन. सो एंटीबॉडीज बिलोंग टू व्हिच ग्रुप ऑफ प्रोटीन? इम्यूनोग्लोब्यूलिन. ये बाय हार्ट किया. शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं क्लास? आईजी. ठीक है? दे आर प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन. ऐसे ही पहले से रेडी नहीं रखा हुआ. बॉडी के पास इम्यूनोग्लोब्यूलिन रेडी है, बट इट इज नॉट इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी हम बनाएंगे. ठीक है? कब बनाएंगे? जब एंटीजन आएगा, नहीं तो नहीं बनाएंगे. स्टिम्युलेट होना बहुत जरूरी. इज दैट क्लियर? यस. सो दे आर फॉर्म in response to antigenic stimulation. ठीक है? Who makes them? MCQ, plasma cells. But who makes plasma cells? B lymphocyte. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है? प्लाज्मा सेल्स कितने एंटीबॉडी बना सकते हैं पर सेकेंड? नोट, 2000 molecules of antibody
every second. You can imagine your defense system is working so great. Yes, look at this. 2000 molecules per second. That means in case we get infected by any way, what will happen? What will happen? We will immediately release lots and lots of antibody. पूरे बॉडी का प्रोटीन इम्यूनोग्लोबुलिन इस काम में लग जाएगा. ओके 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड. वी आर नॉट वेटिंग कि जब वायरस का नंबर बढ़ेगा तो ज्यादा बनाएंगे. नहीं, हम ज्यादा ही बनाएंगे. बहुत सारे, मतलब your defense system is very very effective. ठीक है. So let's recap here for something. Antibodies are glycoprotein. They belong to a group called immunoglobulin. They are used only when there is an antigen. They are formed by plasma cells who are formed by lymphocyte. Antibodies can be produced how much? 2000 molecule per second. Is that clear? Yes. पर ये नहीं था क्वेश्चन जिसको मैं बोल रही हूँ कि बोर्ड बार बार पूछता है. बोर्ड क्या पूछता है? स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. ये रहा वो क्वेश्चन. ठीक है. अब क्लास बिफोर रीडिंग इट आई वुड लाइक टू शो यू. ये देखिए, ये है एंटीबॉडी. शेप क्या है? कई बार हम बोल चुके हैं. व्हाट इज द शेप? वाई शेप. वेरी करेक्ट. ठीक है. लेकिन अब वाई में हम डिटेल में जा रहे हैं. लुक केयरफुली. बाय हार्ट करो. एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 chains of protein. How many chains? 4. दिख रही है 4 चेन आपको? मैं दिखाती हूँ. 1 2 3 4. ओके. अब आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि 2 chains 1 and 2 are heavy chains and 3 and 4 ये दो लाइट है. Can I also call them as long chain and short chain? ध्यान से देखो क्लास. 2 छोटे और 2 बड़ी है ना, बराबर है. So we have 2 long chains. Tell me the other name. Heavy. We have 2 short chains. They are light. ठीक है. When I say light मतलब molecular weight की बात हो रही है इधर. ठीक है. Is this much clear? First point. Antibodies are glycoproteins. They are made up of 4 chains of protein, 2 heavy and 2 light. NCERT नीट के बच्चे ध्यान देंगे. We write like this 2H 2L. ये NCERT के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, मिल जाएगा. 2H 2L. ठीक है. एक बार ये क्वेश्चन था. 2H 2L is representation of antibody. 2 heavy 2 light. ठीक है. और बहुत इजी है क्लास. ठीक है. ओके. बट आर दे कनेक्टेड? यस. चारों चेन कनेक्ट होनी चाहिए कहीं पे. दे आर कनेक्टेड ऑलवेज बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड. ये देखिए यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स दिख रहे हैं. क्लियर है? और एक्चुअली यहाँ पे भी जो यहाँ पे दिख नहीं रहा. सो वी हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड. देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, दिस जंक्शन जो Y का जंक्शन दिख रहा है, यस, इस पॉइंट को बोलते हैं hinge. What is this junction known as? Hinge. H-I-N-G-E. ठीक है. And these are called the 2 arms of antibody. जैसे आपके 2 हाथ हैं, वैसे एंटीबॉडी के 2 हाथ हैं एंटीजन को पकड़ने के लिए. ठीक है. अब और एक चीज दिख रही है लेबलिंग में, कांस्टेंट पोर्शन. मतलब प्रोटीन के कुछ पार्ट फिक्स है, वो वैसे ही रहते, they never change. But some parts are always changing. Variable part. ये देखो ऊपर के 2 ends वेरिएबल है, they keep on changing. और नीचे का जो पार्ट है चारों प्रोटीन्स का, that is constant. Can you see? Heavy में भी वेरिएबल पार्ट. देखिए आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, वो हेवी चेन है. कैन आई कॉल इट एज लॉन्ग चेन ऑल्सो. येलो दिख रहा है, वो लाइट चेन है. करेक्ट. कैन आई कॉल इट एज शॉर्ट चेन. देन यू कैन सी द डाइसल्फाइड बॉन्ड. यस. एंड दैट इज द हिंज. उस जंक्शन को क्या बोलते हैं? हिंज. क्लास ये N और C क्या है?
व्हाट इज दिस NNC? कुछ आइडिया? एन टर्मिनल सी कहाँ पे पढ़ा है ये? 11th में टॉपिक था, बोलो। बायोमोलिक्यूल्स याद है? उसमें प्रोटीन जब हम बनाते हैं अमाइनो एसिड ज्वाइन करके, तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होता है, अमाइनो एसिड एंड और कार्बोक्सिल एंड होता है। तो ये प्रोटीन चेन ही है ना, उसका कार्बोक्सिल एंड है और ये उसका अमाइनो एसिड एंड है। वो नहीं भी लिखा तो चलेगा, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है डोंट वरी, बट यू शुड नो व्हाट। कहीं पे भी आप एन देखोगे तो आपको क्लिक होना चाहिए, ये अमाइनो एंड है प्रोटीन का और ये कार्बोक्सिल, ठीक है? याद आया कुछ? अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड ज्वाइन करके बनता है प्रोटीन। आर यू गेटिंग इट? ये 11th का बायोमोलिक्यूल्स। आई डोंट नो हाउ मच यू रिमेम्बर योर 11, थोड़ा याद कीजिए। ओके, अब इधर हिंज लेबल्ड है, देखो हिंज दिख रहा है आपको? लेबलिंग दिखा? ये हिंज क्लियर है? यस, ये वेरिएबल जोन है और ये नीचे वाले कांस्टेंट जोन है, करेक्ट? अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन एंटीबॉडी विल बाइंड टू एंटीजन, कहाँ पे बाइंड होगा? तो देखो ऊपर एक लेबलिंग है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन यहाँ आके बाइंड होगा। मैं एक एंटीजन को लेके आ रही हूँ बाइंड करने के, देखो ये एंटीजन इधर बाइंड होता है। तो एक टाइम में कितने एंटीजन हो सकते हैं? 2 हाथ है ना, 2 आर्म्स, 2 मैक्सिमम 2, एक तो हो ही सकता है बट मैक्सिमम इज 2। याद रखो ये, ठीक है? At a time one antigen can bind to how many antigen? 2 types नहीं बोला मैंने, 2 types नहीं, स्पेसिफिक वो एक के लिए, पर इट इज लाइक एक हाथ से मैंने एक एंटीजन को पकड़ा है, दूसरे से दूसरे को पकड़ा है। अपने हाथ से कंपेयर कीजिए एंटीबॉडी को। आर यू गेटिंग इट? यू विल feel you can bring both your hands together and make a Y shape with your arms and palm, correct? And you can feel like an antibody, देखो, ठीक है? ये क्लियर है आपको? यस, ओके। ये देखिए, वो देखो एंटीजन आके ज्वाइन हो गया उधर, दिख रहा है एंटीजन? हाँ, अब उस दो और न्यू वर्ड्स है, एपिटोप, पैराटोप। So please by heart class, the antigen binding site which is on the antibody is known as paratope. What is it known as? Paratope. पर एंटीजन के पास भी तो कुछ जोन है जिसको एंटीबॉडी जाके ज्वाइन होता है, उसको बोलते हैं एपिटोप। तो ये क्या है? ये जो ब्लैक दिख रहा है, व्हाट इज दैट? एपिटोप। उसके लिए दूसरा वर्ड बोलो, एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट। एंटीबॉडी उधर जाके बाइंड हो जाएगा ना, इट इज एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट, बराबर है ना? यहाँ ज्वाइन होना है, ठीक है? और ये क्या है? पैराटोप। व्हाट इज दिस? एंटीजन बाइंडिंग साइट। वहां पे कौन आके ज्वाइन होने वाला है? एंटीजन आएगा और उधर ज्वाइन होगा। क्लास में ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर, अगर ये मेरा एंटीजन है तो एंटीबॉडी में उसको बाइंड होने के लिए स्पेसिफिसिटी चाहिए, तो इट विल गो एंड बाइंड, करेक्ट? अदरवाइज वो बाइंड नहीं हो पाएगा। देखो बाइंड हो गया, कैन यू सी? इट फिट्स इनटू इट। समझ में आई बात? यस। So we have a paratope and we have a epitope, and they are very specific, like lock and key, ताला और चाबी, एक ताले की एक ही चाबी। तो एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी, वो चाबी से आप दूसरे एंटीजन को नहीं कुछ कर सकते, दूसरे ताले को नहीं खोल सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। Now we will read. I've shown you diagrammatically fully ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे भी देख सकते हैं, देखो एंटीजन दिख रहा है येलो कलर का, सी उसके पास एक बाइंडिंग जोन है एपिटोप, और एंटीबॉडी दिख रहा है आपको जिधर रेड कलर वाले एंड में देखो पैराटोप, एंड दे जॉइन, ठीक है? कैन यू सी आइडियोटोप? वो आपके मतलब हेवी डायग्राम्स में है ये,
So but it was very clear, so I put it here. Don't worry about आइडियोटोप एंड फैब, वो सब आपने, ठीक है, कैन यू सी? और आपको दिख रहा है एपिटोप और पैराटोप काफी मैच होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से फिक्स हो सकते हैं, जैसे हाउ अ की फिट्स इनटू अ लॉक, है ना, बराबर है। देखो उनका एंड सेम है, ऐसा नहीं ना कि एपिटोप कुछ ऐसा पॉइंटेड है, ऐसा है क्या? नहीं, देखो वो भी वैसा ही फोल्डेड है जैसा कि यहाँ पे है, करेक्ट, सो इट विल बी एबल टू फिट, ठीक है। गेस क्लास, आई एम गोइंग टू द रीडिंग पार्ट ऑफ इट। हमने डायरेक्टली डायग्राम पे जंप किया था, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्लास जो भी टाइप्ड है वो टेक्सचुअल है, मैंने आपको हमेशा बोला है, ठीक है। जो डायरेक्ट स्लाइड होती है, मतलब कहीं से गूगल से इमेज है या कहीं से हमने ली है, तो वो आपको दिखेगा कि वो टाइप्ड नहीं है, ठीक है। एंटीबॉडी इज ऑलवेज वाई शेप, आवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी चेन्स? 4, 2H2L दिख रहा है, 2H2L, 2 heavy 2 light, ठीक है। 2 heavy chains, 2 light chain, मैं वही चीज बोल रही हूँ जो डिस्कस हो गई है। they are connected by disulfide bond, the region where the antibody is joined, the two arms are joining to the stem is known as hinge, correct? Then you have variable end and you have constant end. Variable एंटीजन के हिसाब से होता है और कांस्टेंट फिक्स होता है, करेक्ट। द वेरिएबल रीजन हैज एंटीजन बाइंडिंग साइट कॉल्ड पैराटोप एंड इट इज बाइवेलेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बाइवेलेंट? देखो लिखा है उसका मीनिंग, 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, है ना। एंटीबॉडी के साथ कितने एंटीजन बाइंडिंग पॉसिबिलिटीज है? दो ही हाथ हैं उसके, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? इफ यू आर क्लियर, योर 3 marks are fixed with the diagram. डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। नाउ क्लास, अगर आपको लग रहा है कि डायग्राम डिफिकल्ट है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 1 मिनट, या ये रहा, मेरे को डायग्राम आ गया। ड्रॉ एंटीबॉडी, व्हाट विल आई डू? लॉन्ग चेन, ठीक है। देन व्हाट विल आई डू? शॉर्ट चेन, थोड़ा मोटा करेंगे उसको, ब्रॉड करना है। क्लास में फिंगर से बना रही हूँ, इतना खराब नहीं बनाती मैं, फिंगर से बना रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे आई डोंट नो व्हाट एल्स स्क्रीन पे काम कर सकता है। आपको कुछ पता है तो मुझे बताइए, ठीक है। अब इसे ज्वाइन करना है, करेक्ट। कौन सा ज्वाइन था? डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड ऐसे दिखा देने का, ठीक है। और मुझे क्या बनाना है वहां पे? एंटीजन बाइंडिंग साइट, पैराटोप बन गया, यस। श्योर, अभी लेबलिंग बोली, हिंज, हेवी चेन, लाइट चेन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। ये कौन सा एंड है? वेरिएबल एंड, ये है कांस्टेंट एंड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, करेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको हेवी याद नहीं तो प्लीज राइट लॉन्ग चेन, शॉर्ट चेन, हो गया। ये डायग्राम बनाना है और ये जो अभी डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा था वो पढ़ना है, ठीक है क्लास। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? जो डिस्क्रिप्शन अभी पढ़ा मैंने, ये वाला, ठीक है। और मैंने आपको 2, 3, 4 डायग्राम क्यों दिखाया कि इन सम और द अदर वे यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो इसमें हिंज नहीं था ना, इसमें पैराटोप नहीं था, तो यहाँ पे हिंज दिख रहा है, एंटीजन बाइंडिंग साइट वर्ड है, इधर एन और सी टर्मिनल है, सो ऑल पॉइंट शुड बी क्लियर। यहाँ पे आपको पैरा और एपी बहुत परफेक्टली दिख रहा है, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई वी शोड यू 2, 3 डायग्राम। इफ यू ओपन द टेक्स्ट बुक, डायग्राम बहुत अच्छे से दिया हुआ है, को वैसा ही ड्रॉ करना है। टेक्स्ट बुक में क्वाइट लाइन्ड डायग्राम है, ठीक है। इज क्लियर? यस। कैन वी मूव अहेड टू द स्ट्रक्चर अ बिट मोर? Formation of antigen antibody complex. This will be other question. This will not be the structure. So how does antigen antibody react? So first point, they react in blood. और तो कहीं react नहीं करेंगे. And to study this reaction is known as serology. Serology, serum. Blood में से cell निकाल दे, protein निकालते तो क्या बचता है? Serum. ठीक है? So study of antigen antibody interaction is called as serology. ठीक है? Is that clear?
Yes, each antibody is specific for a antigen. हम ऑलरेडी ये पॉइंट बोल चुके हैं, ठीक है. Combining site of antigen are called epitopes and antigen binding sites are called peritope. Correct? Yes, and they join. And where is the paratope? At the variable end. Constant end पे नहीं है, वो variable end. और वहां पे जाके वो ज्वाइन, ठीक है. जब वो ज्वाइन होता है तो व्हाट हैपेंस, स्मॉल वेरिएशन, अगर थोड़ा भी चेंज हुआ, इसमें अगर मैंने थोड़ा सा शेप चेंज कर दिया, ऐसा कर दिया, तो एंटीजन बाइंड नहीं होगा. एंटीजन बाइंड नहीं होगा. आर यू गेटिंग द स्पेसिफिसिटी ऑफ इट? सो रीड दिस. स्मॉल वेरिएशन इन वेरिएबल रीजन make each antibody highly specific for a particular antigen. So each हर एक ताले की फिक्स चाबी है. देखा जाए तो हर चाबी को हम कैसे ड्रॉ करते हैं क्लास? हाउ वी मेक अ की, ऐसा कुछ करते हैं ना. हाँ, ये चाबी है, करेक्ट. भी देखा जाए तो हर चाबी ऐसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता. कुछ चाबी ऐसी होती है, कुछ में 2 ही टीथ दिखते हैं, कुछ में 3 टीथ दिखते हैं. जरा से वेरिएशन भी हुआ तो चाबी से ताला नहीं खुलेगा. बराबर है. सेम वे एंटीजन एंटीबॉडी बहुत स्पेसिफिक होती है. स्मॉल वेरिएशन मेक्स इट वेरी स्पेसिफिक, ठीक है. द वेरिएबल रीजन इनेबल्स द एंटीबॉडी टू रिकॉग्नाइज द एंटीजन एंड बाइंड टू इट इन व्हाट फैशन? लॉक एंड की. मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, ताला चाबी, करेक्ट. तो व्हाट इज द मोड ऑफ बाइंडिंग? व्हाट इज द टेक्निक? लॉक एंड की. मतलब आप गलती से इधर उधर नहीं जा सकते हो, ठीक है. एंड दिस इज नोन एज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ठीक है. यस. अब अगर आपको लग रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाना है, नहीं क्लास, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है. जैसा हमने बनाया था बस वैसा बनाना है. इधर एक एंटीजन को ले आना है आपको, जो सिमिलर होना चाहिए शेप में, और उसके साथ बाइंड करना है. एंटीबॉडी, एंटीजन, एंड दिस इज द साइट. ऐसे दिखाना आपको, ये ऐसे कॉम्प्लेक्स करके नहीं, बट दैट इज द बाइंडिंग वे, ठीक है. इज दैट क्लियर? सो लेट्स लुक एट एंटीबॉडी. नाउ फर्स्ट आई विल टेल यू टू लुक एट द बेस. कैन यू सी द एंटीबॉडी? Can you see that circle? That is antigen. It joins with the antibody. Antigen antibody complex. This is what we were learning. ठीक है? Very clear? अब देखिए, एंटीजन इतना बड़ा है तो एंटीबॉडी उसको बाइंड हो रही है. जाके देखो अभी कैसा दिख रहा है आपको. How is it? See, इधर बाइंड, इधर बाइंड हुई. We said ना, उसको पूरी तरह से सराउंड कर लेते. मैम एंटीजन भी बनाना है एंटीबॉडी के साथ. Yes, if they are asking you कॉम्प्लेक्स तो बनाना है, कोई भी शेप बनाओ, जरूरी नहीं बड़ा बनाना है. एकदम सिंपल बनाइए. आप ऐसा वाला बनाइए जो एकदम नीचे मैंने दिखा. ये रही एंटीबॉडी, ये रहा एंटीजन, है ना. इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है. ये देखिए, ये वाला भी इजी है. एंटीजन एंटीबॉडी, ये देखो, ये रहा आपका एंटीजन, बराबर है. और ये देखो, वो जाके किसको बाइंड हो गया? एंटीबॉडी को. अकॉर्डिंग टू शेप, शेप देखिए उसका, you will see the shape. एक जगह पे सर्कुलर है, एक जगह पे पॉलीगोनल टाइप है, तो वही एंटीबॉडी बाइंड होगी ना, दूसरी बाइंड नहीं होगी, ठीक है. इज दैट क्लियर? बट व्हेन विल यू ड्रॉ द एंटीजन? व्हेन यू टॉक अबाउट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. अगर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी आता है, यू कैन श्योरली स्टॉप हियर. ऐसा डायग्राम बना सकते हो. खाली लिख दीजिए एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इफ यू रिमेंबर इट, यू कैन राइट इट एज पैराटोप. लेकिन लेबलिंग सब डालिए, हैवी चेन, लाइट चेन. ये डायग्राम बार बार आता है. एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स उनका फेवरेट नहीं, ठीक है. आर वी क्लियर बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस? यस क्लास, यस. व्हाट इज द टॉपिक? इसका हम सब वेट कर रहे हैं ना. हर रोज न्यूज में आजकल ये भी सुनाई देता है, वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन बन गई है, वैक्सीन नहीं बनी है, काम कर रही है, नहीं कर रही है, बराबर है. एंड वी ऑल आर वेटिंग. करेक्ट क्लास? सो वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास.
जो वैक्सीन नहीं आ रही वो छोड़ दीजिए, पर हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में वी हैव टेकन सो मेनी वैक्सीन्स ऑलरेडी. Okay, you are the younger generation, you have taken more, correct? We have BCG vaccine, we have polio vaccine, we have typhoid vaccine, we have MR vaccine, MMR, rubella measles, correct? Rubella measles mumps बोलते हैं उसको, MMR. Okay, you have chickenpox का vaccine, you can take smallpox vaccine, whooping cough, so many vaccines we have taken and we will take in future also when it comes. So let's look at the concept of vaccination. यहाँ पे आ जाइए. Vaccination, administration of vaccine. So immediately question आता है, what is vaccine? It is an inactivated pathogen. एक पैथोजन है जो मरा हुआ है, या तो अध मरा है, या तो बहुत ही वीक है, उसको बोलते हैं वीकेंड पैथोजन. सो डेड पैथोजन, वीक पैथोजन जिससे डिजीज नहीं होगी, या तो उसको न्यूमेरिकली बहुत कम डालना है. सपोज इफ आई गेट लैक वायरस इन माय बॉडी, और तभी इन्फेक्शन हो सकता है, तो लैक नहीं डालना है, वी मे जस्ट पुट few 50 viruses, तो बॉडी उससे फाइट कर लेगी. Then that when you put in the body to fight against a particular pathogen to develop protection is known as vaccination. ठीक है? So body's immune system protects against the pathogen by learning. Vaccination is like giving a prelim exam, है ना? कॉलेज आपको मार्च में फाइनल एग्जाम के पहले एक बार प्रीलिम देने बोलता है, कंपल करता है, प्रीलिम लिखना ही पड़ेगा, बराबर है? जबकि प्रीलिम के मार्क्स काउंट नहीं होते, फिर भी लिखना ही पड़ता है उसको. क्यों? प्रैक्टिस है. प्रीलिम देख के आप देने के बाद योर आईज आर ओपन कि अच्छा बोर्ड पेपर ऐसे आने वाला है, इतना ही टाइम मिलने वाला है, तो आप बहुत जोरदार पढ़ाई करने लगते हो, फिर एकदम सीरियस हो जाते हो. करेक्ट? सेम वे when this inactivated pathogen goes into the body or dead pathogen goes into the body, कभी कभी खाली उसका प्रोटीन कवर बॉडी में डाल देते, सिर्फ कवरिंग, goes into the body, body learns how to fight and protect itself, and this is known as vaccination. ठीक है? now class, usually हमारी बॉडी बिना वैक्सीन के भी काम करती है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा एफिशिएंट है, बट इधर एक बट आ गया, सम पैथोजन जिनको बॉडी ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, वो इम्यून सिस्टम को क्या कर जाते हैं? फूल. ओके, दे मेक द इम्यून सिस्टम फूल एंड दे मे कॉज इलनेस. हम में से ऐसा कोई है जो कभी बीमार नहीं हुआ? नहीं बढ़िया, जैसे सर्दी, खांसी, टाइफाइड, निमोनिया, कुछ भी, कुछ ना कुछ तो होता है ना. करेक्ट? फीवर तो आया ही होगा. So we all keep on getting infected. Our immune system keeps on fighting. बराबर है? Our immune system keeps on fighting. लेकिन क्लास, क्या हम रोज बीमार पड़ते हैं? हर रोज नहीं, पर हम हर रोज फाइट करते हैं. यस, सिस्टम बहुत अच्छा है, बट कभी कभी फेल हो जाता है, कभी कभी. That time you fall sick, you get fever, you get cough, you get cold. Correct? We may suffer from serious illness. कभी कभी कुछ ज्यादा हो जाता है, हमने बाहर की कोई चीज खा ली, टाइफाइड हो गया, ज्यादा सीरियस. करेक्ट? कभी कभी डेंगू मच्छर ने बाइट किया, तो हमेशा हम बॉडी फाइट करती है, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाती. सो इम्यून सिस्टम कैन फेल. इतना कुछ होने के बाद भी इट कैन फेल, एंड वी नो, वी ऑल नो इट कैन फेल. ओके, सो वैक्सीनेशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? वैक्सीनेशन इज अ वे टू टीच. मैंने बोला इट्स अ प्रीलिम एग्जाम, बराबर है? हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड एलिमिनेट द पैथोजन. बॉडी को आपने एक छोटी सी प्रैक्टिस दे दी. ओके, टू कीप द बॉडी प्रिपेयर्ड if it is exposed to pathogen. ठीक है? Is that clear? Can I use a statement prevention is better than cure? हाँ, ये statement इस चैप्टर में और 2-3 बार आने ही वाला है कहीं ना कहीं से. Prevention is better than cure because when we fall sick, time is wasted.
मनी इज वेस्टेड, है ना, दवाई तो लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर और क्या वेस्ट होता है, हेल्थ खराब होती है, जिसको रिकवर करने में और टाइम लगता है, वी बिकम वीक। और ये तो चलो सब ठीक है, कभी कभी हमें डिजीजेस पेन दे जाती है, करेक्ट, यू मे गेट पेन, स्टमक पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एनीथिंग ना, इट कैन बी पेनफुल, डिजीज कैन बी टॉर्चरस, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती, करेक्ट, इजंट इट? हम थोड़ी सी भी, इफ यू गेट स्मॉल सर्दी ऑल्सो, तो कितना अनकंफर्टेबल लगने लगता है, इजंट इट? आप लेक्चर में बैठे, आपको सर्दी है, नोज रनी नोज है, सर दुख रहा है, आंखें रेड हो रखी है, सो हाउ यू फील, वेरी बैड, तो टाइम वेस्ट हुआ, बराबर है। आपको अगर 2 दिन भी छुट्टी लेनी पड़े तो वो 2 दिन वेस्ट हुआ, वो आपको कहीं ना कहीं से रिकवर करना पड़ेगा। मुझे 2 दिन छुट्टी लेनी पड़ी तो मुझे वो 2 दिन का बाद में तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, मेरे ऊपर लोड आ रहा है, करेक्ट? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो वैक्सीनेशन इज अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक, it's a primary prevention technique. It helps us to fight especially with life threatening disease, जहां पे लाइफ को तकलीफ हो, मीजल्स, पोलियो, टेटनस, वूपिंग कफ, यस, स्मॉल पॉक्स, करेक्ट, रूबेला, ये सब बहुत सीवियर डिसऑर्डर्स में चले जाएंगे, they can cause risk, they can become a problem, so we have to protect the society and ourselves, so vaccination is very very important, ठीक है? yes, ये टेक्सुअल वर्ड नहीं है, यहाँ तक टेक्सुअल था, but this gives a good description. What is a vaccine? Preparation of causative agent of a disease, you make it, you have to make it, na, correct, specially to use for vaccination in order to increase immunity. It is some sort of preparation, हम कुछ बना के बॉडी में डाल रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. It contains agent which resembles the microorganism. It is often made by weak या तो killed microbe or some protein unit जो उसके जैसा है, उसकी तरह, या तो डेड, या तो वीक, या तो उसका प्रोटीन कवर, कुछ ना कुछ उससे मैच होना चाहिए, देन ओनली द बॉडी कैन लर्न, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस. हाउ डज अ वैक्सीन वर्क? लुक हियर, मैंने आपको वैक्सीन दे दी, वीकेंड फॉर्म ऑफ डिजीज एंटीजन विच मे बी डेड और लिविंग, लिविंग भी हो सकता है, उसको हमने बॉडी में डाला, बॉडी रिएक्ट्स टू द एंटीजन बाय क्रिएटिंग एंटीबॉडी, बॉडी ने फाइट किया उसके साथ, फिर इफ द एंटीजन फिर से आया, एवर एंटर्स द बॉडी अगेन, अगेन वर्ड देखिए, बॉडी का इम्यून सिस्टम विल मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट, तो फिर आप बीमार नहीं पड़ोगे, कि पहले कितना डाला था, वीक वाला, तो बॉडी ने फटाफट फाइट कर लिया, हम बीमार नहीं पड़े इधर, ठीक है, एंटीबॉडी बना ली, दूसरी बार आएगा इमीडिएटली एंटीबॉडी बन जाएगी, बिकॉज वी हैव मेमोरी सेल्स, करेक्ट, वी हैव मेमोरी सेल्स, याद है ना, बी प्लाज्मा मेमोरी, तो व्हेन प्लाज्मा विल मेक एंटीबॉडी, या देन इट हैज टू मेक मेमोरी आल्सो, करेक्ट क्लास? समझ में आई बात? यस, वेरी क्लियर क्लास. सिर्फ एक एडिशन कर रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन आप कर चुके, इंजेक्शन ऑफ अ किल्ड वीकेंड ऑर्गेनिज्म विच जनरेट्स इम्यूनिटी. अब इधर आइए, इम्यूनाइजेशन इज दैट प्रोसेस, जब आपको वैक्सीन देंगे एंड योर बॉडी लर्न्स, करेक्ट, प्रोसेस बाय विच पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड. बहुत बार हम बोलते हैं ना इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, करेक्ट, तो गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नीचे, immunization is the process and vaccination is the actual injection or the drop, पोलियो के ड्रॉप देखे 2 बूंद की ऐड आती है ना, करेक्ट, दैट, ठीक है? इज दैट क्लियर क्लास? यस. ये देखो प्रोसेस, ये देखो इधर दे रहे हैं ना उसको, छोटे बच्चे को, ये देखो आप उसको एक्चुअली एडमिनिस्टर कर रहे हो, ठीक है? Very clear? Yes? Okay class, I'm getting back to you. 1 minute.
Okay. So today we have done about vaccine. We have done about antibody. सबसे important part उसमें क्या होगा? Antibody. Please work on antibody. जहाँ तक मुझे लगता है antibody should be a question this year, क्योंकि last year नहीं आया है और इतने सारे प्रॉब्लम्स में आई होप दे मेक द पेपर इजी. अगर आपको एंटीबॉडी इजी लगा है, किसी को डिफिकल्ट लगा है? समझ में आया? समझ में आया ना? हाँ क्लास, ये चैप्टर लेंदी है, प्लीज साथ में पढ़ते जाइए प्लीज, ठीक है? प्लीज साथ में पढ़िए. आपको ऑलमोस्ट 4 दिन का गैप मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के पहले. 2 लेक्चर साथ में हो जाते हैं नो डाउट. कल का आज आप नहीं भी पढ़ पाए, पर ओवरऑल आपको 4 दिन आराम से मिल जाते हैं. प्लीज रिवाइज इट साइमल्टेनियसली, नहीं तो एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल फील ओ माय गॉड ये क्या हुआ. आर यू गेटिंग इट? छोटी छोटी चीज है पर बहुत कुछ, ठीक है? So we stop here. Thank you so much for today. Okay, bye class. Take care.